Okay, ladies and gentlemen, please. Okay, so if you remember, in the last class, we talked about the discrete signals. We were talking about the discrete signals. In the discrete time signals, which you may call as the sequences, discrete time signals, which you may call as the sequences. So we talked, number one, about the unit sample, which you may call as the unit impulse as well. You may see in the literature the word unit impulse as well. So this signal, you have seen that it is equal to 1. It is equal to 1 at 0. It is equal to 0 pay 1. And for the remaining, whether it is negative or positive, it is equal to 0. So we have seen that delta of n is nothing but it is equal to 1 for n is equal to 0 and equal to 0 for n is less than or n is not equal to 0. Simple. ठीक है, हमने ये भी देखा कि this signal is responsible to make all other discrete signals. जैसे अगर आपको याद हो तो we talked about this signal, for example, this signal, which may I call as P of n. So we have seen that this P of n signal is made up of this impulse, this impulse, this impulse, this impulse, but this impulse scaled and shifted. So each of the impulse here is shifted and scaled. इवन अगर आप कहेंगे जी फॉर एग्जांपल यहां 0 पे भी एक होता एक 0 पे भी होता और इसका एम्पलीट्यूड भी 1 होता, तो आप कहते हैं ना तो ये शिफ्टेड है ना ये स्केल्ड है. बट इज स्केल्ड बाय 1. स्केल्ड नहीं है तो स्केल्ड बाय 1. अगर ये शिफ्टेड नहीं है तो शिफ्टेड बाय 0. तो इसलिए इस डेफिनेशन को आपने वो इफेक्ट नहीं होती. मेरी बात समझ आ रही है? कोई आप में से जिसको समझ नहीं आ रही तो बात करें. यू जेंटलमैन, नहीं समझ आ रही? ओके, तो हम कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे नाउ दिस सिग्नल इज एट -3. सो इट मींस इट इज एडवांस्ड बाय शिफ्ट. से मुराद है यहाँ पे एडवांस, यहाँ पे शिफ्ट से मुराद है डिले. तो इट मे बी डिलेड, इट मे बी एडवांस्ड, तो दैट इज कॉल्ड द शिफ्टेड. And it may be multiplied by some positive number, maybe by a negative number, maybe by 1. So that will be called as the scaling. Clear? ठीक है, तो यही वो कह रहा है यहाँ पे कि जनाब what it is a sum of any discrete signal is a sum of scaled delayed impulses. Any discrete time signal or sequence can be represented as sum of scaled delayed, लाजमी नहीं कि delayed हो, it may be advanced as well. ठीक है, impulses. इसलिए the right word may be scaled shifted impulses. Scaled shifted impulses. Clear? Clear, gentlemen, at the back? Okay. Then is the next thing which we studied is the unit step function or a sequence function or a sequence. Now, this is something which we have covered कि जनाब अगर मिसाल के तौर पे that is 0, 0 पे 1, फिर 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1 and so on up to infinity.
while at the negative part it is equal to 0. That is representing u of n. तो अगर आप देखें तो basically your u of n is also made up of the impulses, and here it will be rightly they are the scaled by 1 and shifted or delayed impulses. इस बात क्लियर हो रही है? इसका मतलब है कि आई कैन राइट इट लाइक दिस वन कि u of n is equal to delta of n, this one, then this one, delta of n minus 1, then this one, delta of n minus 2, delta of n minus 3, and so on. Clear? I can write it as well like this: u of n is equal to summation delta of n minus k, and k is equal to from 0 to infinity. Clear? Even I can write it something like this as well. If this is u of n, what will be u of n minus 1? इसका मतलब है कि delayed u of n, delayed u of n. So what it will be if I plot it first? So that is 0, 0 पे 0, 1 से start होगा और चलता रहेगा like this. अगर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि जनाब ये है आपका u of n, जो कि अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं तो ये 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1, and so on and so on. And what is my u of n minus 1? Ladies and gentlemen, this is 1 पे 1, 2 पे 3 पे, जबकि 0 पे 0. ऐसा ही है ना? अगर मैं आपसे कहूं कि इस u of n में से सब्ट्रैक्ट कर दें u of n minus 1, what you will be getting? Because 1 minus 0 is 1. याद रखो कि सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, और जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो आप ये नहीं कर सकते कि इस पहले वाले को इसके पहले वाले से नहीं, इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, दे कांट बी ये एडेड और सब्ट्रैक्टेड. यहाँ पे 0 वाला 0 इंडेक्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है. 1 वाला 1 से होगा, 2 वाला 2 से होगा, 3 वाला 3 से होगा. क्लियर है वन? तो यहाँ पे अगर आप देखें 0 0 पे, तो 1 माइनस दिस इज 0 पे 1, फिर 1 माइनस 1 0, 2 minus 2 0, 3 minus 3 0, and so on. And what this represent? Your unit impulse. तो इसका मतलब है कि we can write another thing here as well कि u of n minus u of n minus 1 is nothing but a unit sample. ये बात भी क्लियर? गुड. उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन, ये तो हमने करी ना, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया. क्लियर? नाउ वी कम टू दी थर्ड type of signal, which is a exponential sequence. The next one is the exponential sequence. जब मैंने सीक्वेंस कहा तो यहां पे कई लोग हैं, जैसे सायरा भी कह रही है दिल में कि जी इट इज अ सीक्वेंस, जो है ये एक डिस्क्रीट सिग्नल है. जब मैं कहता हूं कि इट इज एन एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस, इसका मतलब है कि एन एक्सपोनेंशियल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. ठीक है सायरा, मायरा? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज इस हाउ आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इट.
because it is an exponential one, may I represent it something like this, where n is the index, and you know index is always an integer, maybe positive or negative, maybe zero index, but it is an integer. It is always a integer. Now, if it is an integer, I hope कि इसमें कोई शक हमें नहीं है, because we place the signal at discrete values. ठीक है? Then is, ladies and gentlemen, we can discuss these two, क्योंकि इसको तो discuss कर दिया. We can discuss these two. A, which is the magnitude of the sample sequence, while alpha is another item which is need to be discussed. Ladies and gentlemen, if both A and alpha are real, and मैं चाहूंगा कि आप लोग, अब आपकी थोड़ी सी मैटलैब पे स्ट्रेंथ डेवलप हो गई होगी, तो कल क्लास है कि परसों है? अच्छा, तो आप लोग प्लॉट करें इस सिग्नल को एक्स ऑफ एन को, और चेक करें कि अगर ए भी रियल हो और अल्फा भी रियल हो, तो किस तरह का एक्स ऑफ एन यू प्रिडिक्ट और यू गेट. ठीक है? एंड यू विल फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एन इज आल्सो रियल. The values of these samples will also be real values. नेक्स्ट में ये करें कि ए को तो पॉजिटिव ही रहने दें, while अल्फा की वैल्यू के साथ खेलें. अल्फा की वैल्यू के साथ कैसे खेलें? कि स्टार्टिंग विद अल्फा विच इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1. यानी कहने का मकसद ये है कि ए की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो यहां पे कोई पॉजिटिव वैल्यू लिख दें, मिसाल के तौर पे 0.5, आपकी मर्जी. एंड देन अल्फा की वैल्यू इस रेंज से लें. ठीक है? इस क्लास में सबसे हाई CGPA किसका है? किसी का भी नहीं. ये तो बड़ी अच्छी क्लास है जिसका कोई GPA ही नहीं है किसी का. जी नहीं, हायर मैंने कहा, सबसे हायर जो है वो बताए. सादिया और कौन है? खजरा, आप है? क्या है आपका GPA? 3.6. 3.6 से ज्यादा किसी का है? नहीं है. आपका है. क्या नाम है आपका? सादिया. सादिया का कितना है? 3.7. तो सादिया की मर्जी के मुताबिक हम अल्फा की वैल्यू लेना चाहते हैं, लेकिन बड़े करीब करीब है आपके, तो थोड़ा संभल के चलें. तो जनाब बोलो सादिया, अल्फा की कोई भी वैल्यू बिटवीन 0 और 1 ले लो. लेट इट भी चले, ले रहे हो 0.7, और n तो इंडेक्स है, पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, आपकी मर्जी. ठीक है? तो व्हाट अगेन यू एक्सपेक्ट टू बी द वैल्यू ऑफ x ऑफ n? व्हाट यू एक्सपेक्ट द वैल्यू ऑफ x ऑफ n? एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस. क्लियर? So you will find that the value of x of n is always positive but decreasing. As the n value increase, the value of the x of n, as the n value increases, the x of n value decreases. इसका मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू आपकी ये है, पॉजिटिव है, सेकंड वैल्यू उससे कम, थर्ड वैल्यू उससे कम, फोर्थ वैल्यू उससे कम.
इसका मतलब है सादिया कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये कन्वर्ज कर रहा है। क्यों खिजरा? इट इज गोइंग टुवर्ड्स जीरो। क्लियर हो गया कि नहीं? अब आपने करके मुझे दिखाना है। अगर बुध को छुट्टी है तो कम से कम फिर पीर को छुट्टी नहीं होगी। तो बेहतर है कि हमें आपको इस पे एक असाइनमेंट दे दें कि जी ये करके असाइनमेंट में प्रेजेंट करो कि बताओ हमें कि वाकई क्या, अगर आप ए और अल्फा की वैल्यू रियल लेते हो तो क्या वाकई एक्स ऑफ एन की वैल्यू यानी कि सीक्वेंस रियल आ रहा है? प्रूव करो। फिर ए की वैल्यू पॉजिटिव लो और अल्फा की वैल्यू इस रेंज में रखो, जिसमें टॉपर ने कहा कि जी 0.7 लो, तो हमने उसकी बात मान ली। और हमने कहा कि जनाब इस केस में अगेन योर सीक्वेंस विल बी रियल पॉजिटिव, but the value will be, as the value of n will increase, the value of x of n, which means the sequence will decrease, which means it will be a convergent sequence. ठीक है? आमना का क्या है? ग्रेड, CGPA, ऐसी बात ही तो पूछते हैं ताकि आप ऐसी बातें को अच्छा करने की कोशिश करें। अच्छा जरा, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसी बातें पूछे बगैर हम आगे बढ़ते हैं। और थर्ड केस, ये सेकंड केस था, सेकंड केस था। अब थर्ड केस लेते हैं जहां पे हम अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0 रखना चाहते हैं। इस केस में क्या था, ये थोड़ा सा गौर कर लें। अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान थी। सेकंड केस में अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान थी। इस केस में, थर्ड केस में, -1 और 0 के दरमियान में ले रहा हूं। You will find an interesting something output, and the interesting output will be that the value of x of n will alternate between positive and negative. एक वैल्यू पॉजिटिव तो दूसरी फिर पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। ठीक है? क्लियर? And the last case, when you take the value, the fourth case, when you take the values here, greater than 1, alpha greater than 1. So you will find that the value of x of n diverge. Converge की बजाय diverge. इसका मतलब है, डाइवर्स का मतलब ये है कि इसके ऑपोजिट छोटा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, एंड इट डाइवर्जेस टुवर्ड इंफिनिटी एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस। क्लियर? तो ये टास्क आपको, आपका हो गया कि आपने मंडे को जब आप आएंगे, क्योंकि आपने कहा वेडनेसडे को हम यूनिवर्सिटी हमने बनाई थी, तो उस खुशी में हम काम करना छोड़ देंगे। तो दैट इज इंटरेस्टिंग समथिंग टू। यूनिवर्सिटी किस लिए बनाई थी? कि काम करेंगे। हमने छुट्टी करके बताया कि नहीं जी हम छुट्टी करेंगे, कि यूनिवर्सिटी बनाई थी। है नहीं? आओ, आपकी मर्जी जी, आप मालिक हैं यूनिवर्सिटी के। जी, उस दिन मेहनत ज्यादा होगी तो आपने कहा मेहनत बस कर दो। है काम काम और बस काम। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब ये कल यानी कि मंडे को आप करके लाएंगे, तो फिर मैं आपको कम्प्लेक्स साइड पे ले जाऊंगा और फिर मैं एज्यूम करूंगा कि मेरा अल्फा, अभी तो मैं अल्फा को क्या ले रहा हूं? पॉजिटिव नहीं, कोई भी रियल वैल्यू दे रहा हूं। अब मैं कहूंगा मेरा अल्फा जो है वो कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? रियल प्लस इमेजिनरी। और इमेजिनरी में क्या चीज ऐड हो जाती है? आयोटा या जे। जब हम मैथ्स की जुबान में बात करते हैं तो हम आयोटा लेते हैं, और जब हम इंजीनियरिंग में बात करते हैं तो जे लेते हैं, क्योंकि हम आई, स्मॉल आई से इंस्टेंटेनियस करंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं
इसलिए यहां भी आई करते तो शायद हम कंफ्यूज हो जाते, तो हमने जे ले लिया। तो हम एज्यूम ये करेंगे नाउ माई अल्फा इज some complex part, some real part. Then we'll look at how it behaves. And then we will come to know about the very important things, the complex frequency and phase. We'll come to know about the omega naught, and we'll come to know about the phi. तो ये चीज मैं आपको अगली क्लास में जब ये काम आप करके ले आएंगे, तो मैं ये काम आपको आगे फर्दर करवा दूंगा, उसको डिस्कस कर लेंगे और फिर उसको भी प्लॉट करेंगे। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि अगर आपने किसी भी चीज को सीखना है समय का, तो जरूरी है कि उसको देखने की कोशिश करें। अगर आप उसको देखने की नहीं वो कर रहे, तो बस वो उस सेमेस्टर के लिए शायद काम करे, उसके बाद नहीं करेगा। ओके, अब हम आते हैं जी अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज अबाउट द सिस्टम्स। दैट इज अबाउट द सिस्टम्स। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि सिस्टम है क्या, ये भी हम करेंगे। इसके बाद जब आप कर लेंगे तो पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक सिग्नल्स। लेकिन और ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर मिसाल के तौर पे आपका जो दिस इज सिनोसाइड सिग्नल, ये देखिए, ये दिस इज अगेन सिनोसाइड, ये एक एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव, एंड सो ऑन। तो यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस इन योर ग्राफ। Now I come to the topic which is, as you can see on your screen, which is discrete time systems, sorry. Discrete time system. Ladies and gentlemen, by discrete time systems we mean, first of all, by discrete time, you must understand that it is discrete in nature, which means the independent variable, the system processes the signals where the independent variable is discrete, where the time variable is independent variable is discrete in this case. Now, what is the system? Ladies and gentlemen, if I give you a generic example and then give you some practical examples, probably you will come to know. Now, let it review what this system will do. We know it will process. What it will do? It will transform. What it will be processing? What it will be transforming? The input signal, which may I say have x of n. Okay? And after the processing, it will be giving you the output, which is y of n. Clear? Very simple example can be, very simple example can be that this system, which may I represent by t, which may I represent as t, this is a square. For example, if I give it at 0, 1, at 1, 2, and at 2, 4. So what it will be giving me an output? 1 ka square 1 ही, 0 पे 1. Then at 1, 2 ka square 4, and 4 ka square 16, and it will give me these outputs. Simple. So what has been done by the system? Whatever the input sample was, it was squaring the amplitude of the sample. Okay? Now we give you the practical examples. मिसाल के तौर पे, we give you multiple examples. If we take the example of your mobile, now this is again a system. This system takes the input signal, but you can't see it, but in reality, through its embedded antenna, it is transmitting something into the air. It is transmitting something into the air. So it means it's taking some input, giving me some output,
That's the reason it is a system. Even we can see that, for example, if I have an analog signal and I give it to the system, and the system is an analog to digital converter, it will give me digital output. So it is a system. Then, for example, I take this digital signal or a discrete signal and I give it to the encoder. And may I call it the source encoder? May I call it the source encoder? ठीक है, तो समायका बताएगी कि सोर्स इनकोडर क्या करता है, क्योंकि 4 वीक हो गए आप कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, 4 वीक हो गए जी, ये फिफ्थ आई हो। ठीक, तो फिफ्थ वीक में समायका से पूछ रहा हूं कि आमना बताने के लिए बिल्कुल तैयार है, बताती हो कि नहीं? ओके, क्या ख्याल है आमना? ये काम करता है, ये कंप्रेस करता है। ये क्या करता है समायका? ये कंप्रेस करता है, क्योंकि यहां पे जो डिजिटल सिग्नल हमारे पास सैंपल्स हैं, उससे जो बिट्स जनरेट हो रही हैं, दे आर ह्यूज, टू मच, so that compresses it to less number of bits. For example, अगर यहाँ पे 110110 है, which is 3 plus 3 6 7 bits, and the output might be 11001, which is 5 bit, 2 bits removed. Not clear? But the question is here, why we call it a source encoder? We are compressing the source signal. That's the reason we call it a source encoder. Might be. इसमें मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि इस सोर्स एनकोडर के बाद ये जो 2 बिट्स मिसाल के तौर पे हमने रिमूव कर दिया, हम इसमें दोबारा डाल देंगे। खिजरा वांट टू से दिस थिंग? नो खिजरा, अगर अगर यही करना है तो फिर तो वो वाली बात, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के टीचर थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, अल्ताफ साहब, बड़े जबरदस्त, उनकी बड़े अच्छे टीचर थे जी, लाजमी तौर पे उस दौर के टीचर्स शौक से पढ़ाते थे। तो उन्होंने एक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में आप किसी को तंग करना चाहें तो बड़ा आसान होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया है तो इधर क्यों नहीं गया, इधर क्यों चला गया है, तो आप कर सकते हैं। तो उन्होंने एक वाकया सुनाया गपशप के लिए, कि कहते हैं कि जी एक बंदे के पास जिन जो है वो कब्जे में आ गया, तो कहता था काम बताओ वरना मैं तुम्हें खाता हूं, यानी तुम्हें मार देता हूं। तो उसने अपने सारे काम उसको एक एक करके बताता गया, ये करो ये करो ये करो, वो टक टक करके करता गया, वो जिन था। फिर दोस्तों को कहता है ये जिन तो मेरे अजाब बन गया, कहता है और काम दो। तो उन्होंने क्या क्या मसला है, हमारे काम करवा दो। उसने दोस्तों के काम करवाना शुरू कर दिए, दोस्तों के काम भी हो गए। अब कहता है, फिर वो कहता है काम बताओ वरना तुम्हें मारता हूं। तो एक दोस्त को फिर बैठा कि क्या करूं, तो दोस्त ने कहा कैसे करो, इसको आलू ले दो, उसको कहो छोटे अलग करो और बड़े अलग करो, है खिजरा? तो वो एक आलू उठाता था, छोटे से इसे उठा के छोटों में रखता था, फिर छोटों में देखता ये तो बड़ा हो गया, वापस ला के उसको बड़ा में रखता था। वो लगा रहा और कहता है अपने काम में लगा रहो, वो काम कभी भी नहीं होगा। तो यहां पर भी अगर मैंने इसमें से निकालना है और फिर डाल देने हैं, तो फिर तो फायदा ही खत्म हो गया। ठीक है खिजरा? हाँ, हम इसमें डालेंगे जरूर, लेकिन रिसीवर साइड पे, ट्रांसमीटर साइड पे दोबारा डालने की कोई तुक नहीं बनती। क्लियर हो गया खिजरा? अब इसका रीजन ये है कि अगर मैं
3.6 वाले को भी कहूं, 3.7 वाले को भी कहूं, है कोई 3.5 वाला, 3.4, 3.4, व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद उमर। इसका मतलब है कि मैं सादिया को, खिजरा को और उमर को कहूं कि आपको एक टेक्स्ट फाइल देता हूं, आपको एक ऑडियो या वॉइस फाइल देता हूं, और आपको एक अदद वीडियो फाइल देता हूं। आप इनको कंप्रेस करके दे दें मुझे। इतना तो मेरा स्टूडेंट मेरे लिए कर लेंगे ना, कर देंगे। देखें सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सारे कहते हैं जी हाजिर है, लेकिन सिर्फ इस सेमेस्टर में। तो खिजरा क्या इस्तेमाल, नहीं सादिया क्या इस्तेमाल करेगी, क्या करोगी सादिया मेरे लिए? सादिया कहती कुछ भी नहीं करूंगी। क्या करोगी? नहीं, मुझे करके देना है आपने, मुझे नहीं पता, मैं तो इतना आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं हूं ना। मुझे आपने ये करके देना है कौन सा टूल इस्तेमाल करोगी। चले खिजरा आइडिया देती है तो फिर इसको आइडिया आ जाएगा जी। क्या करोगी, किस टूल से करोगी? कोई टूल इस्तेमाल करोगी ना, या कंप्यूटर को यूं इसके बाद बैठ के कहोगी ये सर ने 3 फाइलें दी हैं इसको कंप्रेस कर दो, और ये कर देगा? ऐसे ही होता है? नो। तो व्हाट यू विल बी डूइंग देन? विन रॉर, जैसे इसने कहा, आमना ने कहा कि विन विनजिप यूज कर लूंगी, विन रॉर यूज कर लूंगी। क्यों उमर, आप क्या क्या कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे? यही। तो चले आप सादिया बता दें कि अगर मैं इन तीनों पे विनजिप या विन रॉर इस्तेमाल करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा। तो हमें बिल्कुल राइटली बता दिया सादिया ने कि कंप्रेस तीनों नहीं होंगे। टेक्स्ट फाइल तो कंप्रेस हो जाएगी, वॉइस और वीडियो फाइल कंप्रेस नहीं होगी, शायद वो बढ़ जाए, क्योंकि हर चीज का अपना कंप्रेसिंग टूल है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास वॉइस है, इसको कंप्रेस करना है तो ये विनजिप से नहीं होती, इसके लिए आपको कोई वोकोडर इस्तेमाल करना पड़ेगा, वॉइस कंप्रेसर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कोई वीडियो है तो आपको लिए उसको वीडियो का कंप्रेसर यूज करना पड़ेगा, विनजिप विरार नहीं करेगा। इसी तरह अगर कोई ऑडियो फाइल है तो आप उसको ऑडियो से करेंगे, कोई पिक्चर है उसको पिक्चर के कंप्रेशन टूल से कंप्रेस करोगे। ये नहीं कि बस एक विनजिप पकड़ा सब पे लगा दिया। तो इसलिए इसको सोर्स इनकोडर कहते हैं कि लुकिंग एट द सोर्स इट विल यूज द कंप्रेसिंग टूल। हर एक पे एक ही असला उठा के नहीं दौड़ पड़ना। क्लियर होगी मेरी बात? तो इसका मतलब कि ये सोर्स, कहने का मकसद क्या था, ये सोर्स इनकोडर एक एक सिस्टम है। इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर आप यहां पे एक इंक्रिप्शन टूल यूज करते हैं, इंक्रिप्शन यूज करते हैं, ठीक है उमर, तो लाजमी तौर पे ये आपसे प्लेन टेक्स्ट में बिट्स लेगा, प्लेन टेक्स्ट के बिट्स देगा और आपको साइफर टेक्स्ट में दे देगा। तो अगेन ये इंक्रिप्शन के टूल, ये इंक्रिप्शन का बॉक्स क्या है, सिस्टम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम क्या चीज है, एक कुछ इनपुट लेता है, और अगर ये डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है तो डिस्क्रीट इनपुट लेगा, डिस्क्रीट आउटपुट देगा, लेकिन उसको प्रोसेस करके, उसको ट्रांसफॉर्म करके। अभी नहीं क्लियर? नहीं क्लियर? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम इसकी टाइप्स की तरफ थोड़ा सा इशारा करें, अगर इसकी टाइप्स के, तो पहला सिस्टम हम पढ़ना चाहते हैं आइडियल डिले सिस्टम। पहला सिस्टम हम पढ़ना चाहते हैं आइडियल डिले सिस्टम।
क्या करता है जी आइडियल डिले सिस्टम? एज द नेम रिप्रेजेंट्स, एज द नेम रिप्रेजेंट्स, एन आइडियल डिले सिस्टम इज अ सिस्टम, और डिले सिस्टम भी कह सकते हो, आइडियल नहीं लगाते हो तब भी, कि डिले सिस्टम इज अ सिस्टम which delays the samples of a discrete signal. जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक डेल्टा ऑफ एन है, हमने ये एक सिस्टम को दिया और उसने हमें डेल्ट वन के ऊपर यही वन दे दिया, इसका मतलब है कि डेल्टा ऑफ एन माइनस वन दे दिया, डेल्टा ऑफ एन माइनस वन दे दिया, तो विच मीन दिस सिस्टम विल बी कॉल्ड एज ए डिले सिस्टम। अगर हमने यही इनपुट दोबारा दिया इस सिस्टम को और इसने हमें हमें माइनस वन पे दे दिया, तो विच मीन्स इट इज अ डेल्टा ऑफ एन प्लस वन, दिस मीन्स इट इज एडवांस सिस्टम। समझ आ गई? तो दैट इज द डिले सिस्टम or advanced system. So it is a system because it is transforming the input and giving some different output. Clear? So if we can want to represent them, this is for example my x of n and this is my y of n. So ladies and gentlemen, you can see that y of n is nothing but n minus nd, where nd can take any positive value, nd can take any positive value if it is a delay system. By any का मतलब again indexes, any से मुराद रियल नंबर नहीं है, इंटीजर वैल्यूज, जैसे n माइनस वन, n प्लस वन, n माइनस टू, n प्लस टू, वगैरह वगैरह। Clear? So ladies and gentlemen, and if this Khizra take a negative value nd, then it will be called as an advanced system. जैसे भी आपने यहाँ पे देखा कि that was a delta of n plus 1, which is basically n minus 1. So this nd is taking a negative value. This nd is taking a negative value. Clear? Can I? Everyone? The next system which you want to study is the moving average. उसके बाद memoryless system. मतलब ये तो याद रखना इतना आसान है कि आप बस अपने लेफ्ट पे देखेंगे, राइट पे देखें, आपको मेमोरीलेस सिस्टम मिल जाएगा। जब अभी पूछोगे जी पिछली क्लास में क्या पढ़ा है, तो आपने जवाब देना है हमें क्या पता। इवन मिरर भी देखो तो हम भी आपको मेमोरीलेस सिस्टम मिलेगा। एनीहाउ, तो हम बात कर रहे थे कि मेमोरीलेस सिस्टम क्या है, विच ओनली प्रोसेस द sample which is at the present, which means it doesn't take care of any of the previous values, inputs. No. मिसाल के तौर पे अगर एक एडर है, अभी आप प्रीवियस एग्जांपल में हम जाएंगे तो या सिस्टम में हम जाएंगे विच इज द मूविंग एवरेज, विच इज बेसिकली ए वेरी क्रूड फॉर्म ऑफ ए फिल्टर। तो वहां पे आप क्या कर रहे होते हैं कि यू आर टेकिंग सब वैल्यूज, present values and some past values, and you are adding them, or you are taking the average of them. So this is not a memoryless system. You are taking into account some previous values. But in the memoryless system, they are called the memory systems. Such systems are called memory systems. But if it only takes the present value and cannot take any previous value into account, into the processing, into the transformation, then it will be called as a memoryless system. For example,
if I say a square or a cube, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई नंबर बोलूं और आप मुझे उसका स्क्वायर करके बता दें, तो मिसाल 2, 4, मिसाल ने क्या आंसर दिया 4, 3, 9, 4। तो इसका मतलब जस्ट इस नंबर को ये ले रहे हैं और गिविंग मी द आउटपुट, ट्रांसफॉर्मिंग दिस इनपुट इनटू एन आउटपुट। दे आर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एनी प्रीवियस वैल्यू। मिसाल के तौर पे योर नेम इमरान, इब्रार ने कहा कि जब मैंने इसको मिसाल को जो नंबर दिया था, यहां पे जो मैंने दिया वो नंबर, इन्होंने उसका नंबर की केयर नहीं की क्योंकि जरूरत नहीं थी। तो सच सिस्टम इज कॉल्ड मेमोरीलेस सिस्टम। जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल के तौर पे है कि आई हैव ए इनपुट y of x of n and I have an output y of n which is the square of the present input. present input। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि जनाब ये है मेरे पास एक सिग्नल, ये 0 पे है, ये 1 पे है, तो 0 वाला y ऑफ 0 पे का वैल्यू देगा। इसी तरह y ऑफ 1, x ऑफ 1, y ऑफ 1 का वैल्यू देगा। इसका मतलब है कि अगर ये फॉर एग्जांपल 2 2 है, तो दिस विल बिकम 4 and this will also be a 4। तो it means it only take into consideration the same index। clear everyone? तो ये कह रहा है कि an example of memory system is a system for which x of n and y of n are related by something like this। जो n की वैल्यू इधर है वही n की वैल्यू इधर है। क्योंकि बाद लोग समझते हैं कि शायद a की वैल्यू होगी तो वो फिर मेमोरी लेस होगा। नहीं, आपका एक्स ऑफ एन तो वाई एक्स ऑफ एन तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने यहां पे 2 लिए, लेकिन एक्स ऑफ 0 जो है सैंपल, दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू वाई ऑफ 0 एंड एक्स ऑफ 1 विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू वाई ऑफ 1। अब भी नहीं क्लियर उमर? क्लियर? ओके, then the next system which we want to discuss is the next system which we want to discuss is the linear system। very important, linear system। ladies and gentlemen, linear system is a system which follows the principle of superposition। principle of superposition। तो अगर कल आपसे कोई पूछ जाए व्हाट इज लीनियर सिस्टम, सिंपली से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलोज, सो दिस सिस्टम इज अ लीनियर सिस्टम। फिर लाजमी तौर पे अगला आपसे पूछेगा कि क्या है ये लीनियर सिस्टम। सारा के साथ कौन है? नाइफा। तो अगर हम इन नाइफा से पूछें कि भाई ये क्या है, तो नाइफा कहना ये चाह रही है कि 2 बातें अगर हो, एक प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी या एडिटिविटी प्रॉपर्टी एंड स्केलिंग प्रॉपर्टी। विच 2 प्रॉपर्टीज? एडिटिविटी प्रॉपर्टी एंड स्केलिंग प्रॉपर्टी अगर को फॉलो करता है, तो दैट मीन्स दैट इट इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मीन्स दैट द सिस्टम इज लीनियर। अब मतलब क्या है इसका? एडिटिविटी, जी बिल्कुल, ये लिखा हुआ है एडिटिविटी प्रॉपर्टी एंड स्केलिंग प्रॉपर्टी, विच जैसे यहां से शाह खिजरा ने कहा कि इसको होमोजेनिटी भी कहते हैं। क्लियर? अब ये कहता क्या है? कहता ये इसका जेंटलमैन कि मिसाल के तौर पे अगर ये मेरा एक सिस्टम है टी एंड उमर, इसको मैं इनपुट देता हूं x1 ऑफ n, ये मुझे आउटपुट देता है y1 ऑफ n। ठीक है, विच इज बेसिकली इक्वल टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द
input. Because what the system is doing, it is transforming the input to an output. ठीक है? अब इब्रार अगर x2 में इसको इनपुट दे दूं इसी सिस्टम को, तो it will definitely should give me an output different, which is y2 of n. लाजमी नहीं कि different. If the input is the same, output might be same as well. ठीक है? तो ladies and gentlemen, now my output will be equal to the transformation of my x2 of n. Agreed, है ना? Now, ladies and gentlemen, if this to the same system, I am inputting x1 of n plus additivity x1 plus x2 n. याद रखो, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि 2 होना जरूरी है. Additivity का मतलब है any number greater than 1. It may be 10 signals which you want to add. So you should understand that now my output is y of n, and what equal to this? किस चीज के equal है? Definitely, ladies and gentlemen, it will be transforming my input as it did here, which is x1 of n plus x2 of n. Clear? Ladies and gentlemen, because it is the transformation, it is the process, definitely this process will be applied to this as well as this. So we can say that t x1 of n plus, because plus t x2 of n. And what this x t of x1 of n and what is this t x2 of n, you can see from here. y1 of n and y2 of n, y1 of n plus y2 of n. Now, ladies and gentlemen, you can easily see that if you sum the inputs, the previous input, you get the output which is also summed. And that phenomenon is called additivity property. That phenomenon is called, and the same has been written here, that you have the input x1 of n, x2 of n. This will be applied, this transformation will be applied to both, and you are getting y1 and plus y2. Clear? Clear, gentlemen? Okay. Now the next one is, if I clear the board, the scaling property. So, ladies and gentlemen, now again I apply the same input x1 of n, any input x1, n1, x1 of n, any. So I will be getting, as you said earlier, y1 of n, which is equivalent to the transformation of my input signal x1 of n. Now what I do further? Again, I take the same system t, and now I input, instead of the x1 of n, I'm multiplying with this with any scalar. I'm using the word scalar. Scalar x1 of n. So what I should be getting the output? The answer is definitely that I should have a t, and that will be applied to a x1 of n. A x1 of n. Agreed? Now we know that this is a scalar, and this transformation is on the signal. A is not a signal. That's the reason I emphasized on the word Somaika, that it is not a signal, but it is a scalar. So easily I can write a t, because this is a scalar, just a multiplier, t x1 of n.
Now, ladies and gentlemen, what it is? Y1 of n. So which means I can say that A times Y1 of n, which means if my input is multiplied by a scalar, my output will also be multiplied by the same if the system is linear. If the system is linear. If it is non-linear, this property doesn't hold. Now, if I combine the both, if now I come, because अभी मैंने यहाँ पे स्केलिंग को लिया, होमोजेनिटी को लिया, प्रीवियस में मैंने एडिटिविटी को लिया, अब मैं दोनों लेना चाहता हूं, यानी कि नाउ आई अप्लाई टू माय सिस्टम a times x1 of n plus b times x2 of n. So now it has the additivity as well and the scaling as well. And ladies and gentlemen, I want to get the output y of n. I'm interested in here. So ladies and gentlemen, you can see that again my transformation will be applied to a x1 of n plus b y x2 of n. Ladies and gentlemen, again, this need to be applied to the first, which is a x1 of n plus t b x2 of n. Again, similarly, a is a constant, is a scalar. I can write it like here, and it is t times, which means transform times nahi hai. This is transformation. X of n plus b transformation of x2 of n. And what it will be equal to? A times y1 of n plus b times y2 of n. इसका मतलब यह हुआ कि जब मैंने अपने इनपुट्स को ऐड किया तो आउटपुट भी ऐड हो गए, जब मैंने अपने इनपुट्स को स्केल किया तो मेरा आउटपुट भी स्केल हो गए. तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज कोई फॉलो करता है तो हम कहते हैं कि हाँ, अब ये फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हाँ अब ये लीनियर सिस्टम है. कुछ बात क्लियर हुई? नहीं? अब एक छोटी सी एग्जांपल भी ले लेते हैं ताकि हमें नजर भी आए. फॉर एग्जांपल, you have a system and the system is a resistor and you are applying a voltage. Definitely you will be getting a current. And if you plot that VI curve, what type of curve you expect? Straight line, something like this. So we mean this is a linear system. As you increase the voltage, the current doubles. As you reduce the current voltage, the current decreases. Makes sense. Now, ladies and gentlemen, instead of this R, I take here, ladies and gentlemen, a diode. ये भी आपने अपने किसी एक्सपेरिमेंट में किया है. Now in this case, it will be not a straight line, but it will be a curve. Some part will be somewhat linear, somewhat, but after this it will be completely a curve. But it is completely a curve. It is a non-linear system. For example, you are increasing the voltage here, but the current is not increasing, for example. Although after this, it may break, an avalanche break will occur and it may go, but I'm not going into this region.
Even that part is not, may not be linear because it has maybe. So even it is a transistor, it's not a linear one. Clear हो गया? But in this course, we will be playing only with the linear systems. We will be not playing with the non-linear systems. ठीक है? Okay. Then is the non-linear system, which I explained a minute before as well, that a non-linear system which does not obey the superposition principle. जैसे मिसाल के तौर पे अभी ये आपके सामने है. फॉर एग्जाम्पल, you are giving an input. You are giving an input to a system which is x of n, and the output is taking the log of the input, logarithm of the input, even the square of the input, maybe the cube of the input. In all the cases, the curve at the output will not be linear. And it will be, मिसाल इसने अच्छी दी है कि for example, you take the log of log 10 or log e, whatever you want, doesn't matter. If my input is 1, then my input is, for example, 10. Clear? So now what I do, I give an input 10 plus 1 plus 10, which is 11. So it will be 1, and it will be again some value. So if the output, चलें जी, कैलकुलेटर तो आपके पास हैं, बिस्मिल्लाह करके जरा आंसर बताएं. log 10 of 1 क्या है? लेडीज एंड जेंटलमैन, कैलकुलेटर आपके पास है. यहाँ पे हम कैलकुलेटर को ऑन करते हैं कहीं. तो log कैलकुलेटर, तो here is the calculator and here is the log 10, और हम ले रहे हैं 1 का log, तो it is 0 as you said, और 10 का log लेते हैं तो it is 1. तो इसका मतलब इन दोनों का सम करें तो 1 आता है. अब log 11 करते हैं. log 11 और log लिया तो it is 1.0 नॉट इक्वल. तो इसका मतलब इसने कौन सी प्रॉपर्टी नहीं फॉलो की? एडिटिविटी को नहीं फॉलो किया. अब हम क्या करते हैं कि हम log 10 लिया और इसकी वैल्यू को स्क्वायर करते हैं. तो यहां तो ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा. लेकिन 11 लिया और फिर उस वैल्यू का स्क्वायर करके देखा तो इट विल नॉट बी द सेम. सॉरी, स्केलिंग किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दी. तो कोई भी इन दोनों में से अगर फॉलो नहीं करता तो दैट फिनोमेना विल बी कॉल्ड एज नॉन लीनियर सिस्टम्स. लेकिन मैंने आपको बताया कि जी लकली यू विल नॉट बी प्लेइंग विद दी नॉन लीनियर सिस्टम, यू विल बी प्लेइंग इन दिस कोर्स विद दी लीनियर सिस्टम्स. क्लियर? तो चलें आज के लिए हम इसको यहां रोकते हैं और